आई हैव नारायण एंड ऑस्टिन विद मी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिथ्स को ब्रेक किया। जैसा कि इन्होंने डायरेक्ट इंडिया से कम्युनिटी कॉलेज में वीज़ा लिया, और उसके बाद कम्युनिटी कॉलेज से जो 2 साल बाद ट्रांसफ़र लिया, तो बहुत ही हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह ऑस्टिन भाई ने यूसी बर्कली के अंदर ट्रांसफ़र लिया। दैट्स द ड्रीम कॉलेज ऑफ मोस्ट पीपल। सो आज इनकी हम जर्नी को भी देखना चाहेंगे और इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, सारा कुछ ये हमें गाइड भी करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी। और नारायण भाई, आप अपने पहले हमें इंट्रोड्यूस करें, एंड देन वी आर गोना हैव सम introduction, and then we are going to start this conversation. Perfect. Thank you so much, Saki bhai, for inviting us to your podcast. Me and Austin, हम दोनों we have been watching your content for past couple of months, and we've been inspired by the recent thing that you have been doing, job कर रहे हैं, the daily you're showing your daily routine, so it वो हमको भी inspire करता है कि हमें भी सुबह 4 बजे उठना है, and then we also have to go to the gym, and also have that mindset and have that schedule. We're getting there. धीरे धीरे होगा. But thank you so much for doing this. And something about me, my introduction. I come from Indore, a city called Indore in Madhya Pradesh in India. वहाँ पे मैंने अपनी पूरी हाई स्कूलिंग करी. फिर उसके बाद मैंने 20 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जस्ट आफ्टर माय 12th ग्रेड. जिन यूनिवर्सिटीज में जाना था वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिली, और जिस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था वहां से स्कॉलरशिप मिली. राइट, तो आई वाज लाइक कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यूएस तो आना है. तो उस समय कम्युनिटी कॉलेज के बारे में जानना शुरू किया कि what what could be my second option and second chance for me, right? Because I applied to बहुत सारी Ivy League universities. I did my early decision in Cornell, waitlist हुआ, eventually reject हुआ, right? And I got into universities like Purdue University, and a bunch of other top schools for computer science program. But I mean, literally my parents didn't have that much money कि वो मुझे स्पॉन्सर कर सकें 4 years के लिए. तो उस समय मैंने कम्युनिटी कॉलेज के बारे में एक्सप्लोर करना चालू किया, एंड I came across this college called De Anza College in Cupertino, that is in Bay Area in California. And I looked up at it and I was like, "Ki chalo, I mean, this could be a second chance." So I applied to that college. Me being, I would say, one of the first students from my entire state or at least city to apply and come to a community college. Very मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ है. बहुत मतलब लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में. हम स्पेसिफिकली जब इंडिया और पाकिस्तान में लोग स्टडी अब्रॉड देखते हैं, यूएस देखते हैं, तो दे लुक अप एट टॉप स्कूल्स, राइट, कि हमें एमआईटी जाना है, हमें हार्वर्ड जाना है, हमें वहां से एजुकेशन करनी है. बट आई थिंक कम्युनिटी कॉलेज इज अ वेरी वेरी गुड वे टू एक्सप्लोर. सो मैं कम्युनिटी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ना, एंड देन फिर आई ट्रांसफर्ड टू San Jose State University. And Austin and me have been roommates since day one. And that is my journey, and I think I will share more about what I'm doing right now after now that the college is getting over and everything. So हम उसके बारे में बातचीत करेंगे. But this is how I ended up in US and Very nice, very nice. So, Austin, can you please introduce yourself, and and also your I want very interested in your experience of UC Berkeley and how you transferred, a little bit, a brief introduction. Sure. Thanks for having us on the podcast. मैं US like 4 years ago आया and I came with the mindset like हम लोग को टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है और अच्छी जगह से पढ़ना है. And I applied to 40 universities और उनमें से मेरे को 26 यूनिवर्सिटीज में मिल गया था. And at that time बहुत सारे लोग पॉडकास्ट ये सब डालते थे इंडिया से यूट्यूब पे, और वही देख रहा था. लाइक ड्यूरिंग कोविड आई वाज बिंज वाचिंग इट. came across few YouTubers, उनको contact किया, and they directed me to like different university options. And through that I understood like how the US works, और उसके through I came across a friend, now a friend, and who I work with. I understood about community colleges even after मेरे को 13 plus यूनिवर्सिटी से full scholarship मिलने के बाद भी I preferred going to a community college because of the proximity to the Bay Area, and I applied to community college in the Bay Area with the mindset I'll transfer to either UC Berkeley with the full to UC Berkeley, or go to like TCU with maybe a full scholarship.
and I have recently graduated Berkeley, and मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम्म। मीटिंग लाइक वन ऑफ द टॉप पीपल्स, एंड सारे बच्चे जो भी यूसी बर्कली आते हैं अपने अपने हाई स्कूल के टॉप 5% में रहते हैं, एंड उनके साथ कैसे पढ़ना एंड हाउ दे इंटरेक्ट एंड how they vision themselves for the future. It has been like a good experience for me. And besides that, Berkeley ka rigor is known for like one of the toughest rigorous schools in the nation. And it has taught me a lot in terms of like how to live life, how different people compete, and how to get the best out of university. वेरी नाइस ऑस्टिन। सो ऑस्टिन, अब मैं इस बात से बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार एक तरफ आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है और दूसरी तरफ आप कम्युनिटी कॉलेज है। हालांकि एक आम बच्चे का माइंडसेट ये होता है कि कम्युनिटी कॉलेज बहुत बेकार है, इसमें तो जाना ही नहीं। और एक तरफ आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन आपने प्रेफर किया कि भाई मैं सिलिकॉन वैली के पास हूँ, बे एरिया के पास हूँ। सो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऑनेस्टली दैट्स माय ड्रीम एरिया टू लिव इन, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कांट, एंड दैट्स रियली अमेजिंग कि भाई आपने 100% स्कॉलरशिप को छोड़ के कम्युनिटी कॉलेज को उसकी लोकेशन की वजह से प्रेफर किया। और अमेजिंग। सो नारायण भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपकी मेन मोटिव, जिस तरह इन्होंने बताया इनका बे एरिया में रहना था या क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सिलिकॉन वैली, जो कि जहाँ से इंटरनेट बना, बहुत सी चीजें बनी। सो व्हाट वाज योर मोटिव कम्युनिटी कॉलेज, अदर देन सेविंग मनी ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो उसके बाद आप हमें बताएंगे कि आपको F1 वीजा जो है वो किस तरह मिला और ऑफिसर को कैसे कन्विंस किया, मोटिवेशन क्या थी और वीजा ऑफिसर को। करेक्ट करेक्ट साकिब भाई। आई थिंक जो ऑस्टिन ने बताया कि जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द लोकेशन, आई थिंक मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा कि मुझे भी 100% स्कॉलरशिप मिली, बट एट सम यूनिवर्सिटी जो मिसिसिपी में थी, शायद मैंने आपके साथ बताया भी था आपको ओवर अ कॉल, राइट। इट वाज मिलसैप्स कॉलेज, राइट। एंड मैंने इसीलिए कम्युनिटी कॉलेज, ये स्पेसिफिकली ये डियानदा कॉलेज चूज किया बिकॉज ऑफ लोकेशन, राइट। क्योंकि इट वाज राइट नेक्स्ट टू एप्पल हेडक्वार्टर, एंड अगर आप देखें 10 से 15 मिनट की दूरी में आपको हर एक मेजर कंपनी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। गूगल का हेडक्वार्टर जो माउंटेन व्यू में है 15 मिनट की दूरी है। एप्पल का हेडक्वार्टर तो लिटरली कुपर्टिनो में ही है, तो 10 मिनट में आप एप्पल के हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। एनवीडिया का हेडक्वार्टर है, टेस्ला का हेडक्वार्टर है। जितनी भी हैपनिंग चीजें हो रही है स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में, वो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को और पूरे बे एरिया में हो रही है। और ये मुझे पता था उसी समय से, क्योंकि जो मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे और मेरे कुछ मेंटोर्स थे, उनसे सुनने में आया था कि नहीं, यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। और चूंकि स्टैनफोर्ड इज लाइक, स्टैनफोर्ड भी यहीं पे है, एंड आई एम एक्चुअली टेकिंग अ फ्यू क्लासेस राइट नाउ एट स्टैनफोर्ड। सो लोकेशन के कारण यू मीट, आई हैव मेट ग्रेट पीपल, जिनका शायद मुझे एक्सेस इतनी आसानी से कभी नहीं मिल पाता जो यहाँ पे मिलता है। यहाँ के जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, लिटरली हर रोज यहाँ पे कम से कम 15-20 इवेंट, अच्छे 15-20 इवेंट्स नेटवर्किंग के लिए हो रहे हैं। somebody is talking about AI, somebody is talking about how to raise money, वहाँ पे VCs आ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे फाउंडर्स आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आपका जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा बनता है। बिल्कुल। एंड इसीलिए मैंने ये चूज किया, एंड आई वुड से कि दैट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट डिसीजन आई मेड इन माय लाइफ, कि मैं इस कॉलेज में आया जिसने मुझे इस लोकेशन से एक्सपोज किया, इस नेटवर्क से एक्सपोज किया, राइट। तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस थिंग्स हैपेंड, एंड सो दैट वाज द मोटिवेशन। ऑफ कोर्स आई मीन पैसे बचे, एंड अनदर मोटिवेशन फॉर मी साकिब भाई वाज दैट कि क्योंकि मेरा मेरे ड्रीम स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, राइट। जब मैं इंडिया से सोच रहा था कि मुझे एक टॉप स्कूल में ही जाना है, तो वो नहीं हो पाया था। तो आई वाज, मैं एक उम्मीद, इस उम्मीद से आया था कि ये मेरे लिए सेकंड चांस है, राइट। कि मेरे लिए सेकंड चांस है टू प्रूव माई सेल्फ अगेन एंड ट्रांसफर टू अ गुड स्कूल, राइट। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी और चीजें पता लगी कि आई मीन जैसे ऑस्टिन वेंट टू यूसी बर्कली, एंड विच इज नंबर वन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। बट मेरे लिए मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे इतने पैसे खर्च नहीं करने थे वो 2 साल के लिए भी। तो दैट्स द रीजन मैंने एक कैल स्टेट यूनिवर्सिटी जो सैन जोसे स्टेट है वहां पे ट्रांसफर लिया, राइट। मुझे क्योंकि मुझे ज्यादा लोन नहीं लेना था,
राइट एंड मतलब मेरे लिए मनी वाज काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी फर्स्ट, राइट? सो दैट्स द रीजन आई मैंने उस तरीके से उस वो डिसीजन लिया। एंड जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि वीजा कैसे मिला, राइट? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मुझे इंडिया में जब मैंने वीजा अप्लाई किया, मैंने सब कुछ खुद से किया, नो एजेंट नथिंग, राइट? मैंने पूरी प्रोसेस खुद से करी एंड वीजा इंटरव्यू के लिए गया हूँ मैंने मुंबई कॉन्सुलेट से अप्लाई किया एंड वहां पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे इतने सारे लोग दिखते हैं जो सूट्स में आए हुए हैं और मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई है, राइट? एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, राइट? कि यहाँ पे तो कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा होगा, लेकिन पता चला कि वो लोग यूएस वीजा इंटरव्यू के लिए थ्री पीस सूट्स टाइज बोस में आए हुए हैं एंड दे आर सब कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ मेमोराइज कर रहे हैं एंड आई एम लाइक मैं तो कुछ करके ही नहीं आया हूँ, राइट? मतलब मैंने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जो फिट इंडिया के एडवाइजर्स थे उनके साथ सिर्फ कुछ मॉक इंटरव्यूज किए थे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, बस दैट्स इट। एंड सारा पेपर वर्क लेके आया हूँ मैं एंड मैं अंदर जाता हूँ, ऑफिसर से बातचीत होती है, मेरा वीजा लेस देन अ मिनट, लाइक लिटरली 60 सेकंड्स के अंदर इट गॉट अप्रूव्ड, राइट? क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे कि मैं ये कौन से कॉलेज जा रहा हूँ, व्हाई आई एम मतलब व्हाट इज माय मेजर, व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाट आर माय marks, like how much marks did I got in my 11th and 12th grade, and who is sponsoring me, right? And what are my plans after graduate, right? ये तीन चार पांच क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। That's it. My visa got approved, like they took my passport and it got approved. It was a very smooth journey for me. यूएस आने के बाद मुझे पता लगा है कि लोग यूएस वीजा को कितना बड़ा फस क्रिएट करते हैं कि यूएस वीजा मतलब भगवान, राइट? लिटरली। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली, अगर आपका इंटेंट सही है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपके पेपर सही हैं, आपकी सारी चीजें सही हैं, तो मतलब आप द प्रोबेबिलिटी जो आपकी डिनायल की है वो बहुत कम है, राइट? सो दैट वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वीजा के लिए। आई थिंक ऑस्टिन का भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, बट ऑस्टिन कैन आल्सो शेयर अ बिट मोर अबाउट दैट। को ऑस्टिन विल शेयर हिज एक्सपीरियंस। एंड जो आपने भी बात की कि आप गए शॉर्ट्स में और बड़े कैजुअल सी टोन में, और लोग जो सारे थे वो टाई लगा के पूरा कोट शर्ट पहन के गए, एग्जैक्टली। तो मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि जब मैं मेरा पहला इंटरव्यू रिफ्यूज हुआ था और मैं भी तब कोट और टाई डाल के फुल बन के गया, सो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो इन कोट एंड टाई। तो फिर मैं दूसरी अटेम्प्ट में गया तो आई वाज वेरी सिंपल वेयरिंग इन सेमी फॉर्मल, तो करेक्ट, मेरा तब लगा। सो ये बहुत करेक्ट। इंपॉर्टेंट टिप है कि भाई इतना ओवर इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, जिस तरह नारायण भाई ने बताया कि भाई शॉर्ट्स में चले गए। सो दैट्स जस्ट अ वेरी गुड। एग्जैक्टली exactly. मतलब मैं तो मुंबई गया हूँ एंड आई एम स्टेइंग एट अ होटल एंड मैं तो नॉर्मल लिटिल नॉर्मल शर्ट और नॉर्मल शॉर्ट्स में लिटरली चप्पल पहन के गया था मैं, लाइक लिटरली स्लीपर्स टू गिव द इंटरव्यू एंड मेरा पहली बार आई गॉट माय वीजा अप्रूव्ड फॉर अ कम्युनिटी कॉलेज। तो अगर कोई सोच रहा है कि कम्युनिटी कॉलेज के लिए वीजा हार्ड है, नहीं। अगर आपका इंटेंट सही है, आपके पेपर्स सही हैं, आपका सब कुछ सही है, तो आई थिंक यू वुडंट हैव अ प्रॉब्लम। बिल्कुल नारायण भाई, यही मैं बिलीव करता हूँ कि वीजा आपको ऑफिसर देगा, चाहे आप कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए 2 साल के लिए आ रहे हो, या आप ईसीएल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए लैंग्वेज के लिए आ रहे हो। लेकिन बात ये कि करेक्ट, आपको ऑफिसर को अपने फ्यूचर प्लान्स को बड़े क्लियर तौर पे बताना होगा कि भाई मेरे प्लान्स ये हैं, 2 साल में यहाँ पे पढ़ के 2 साल में जो आगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिली हुई है या यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है, तो बड़ा क्लियर एक माइंडसेट ऑफिसर को अगर आप बताते हो अपना प्लान, तो करेक्ट, ऑब्वियसली देयर इज नो रीजन कि वो आपको रिजेक्ट करे। बट स्टूडेंट्स को इस वजह यस, से मैं थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करता कि वो बगैर तैयारी के और बगैर एजेंट के थ्रू, या देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो या यस, मोस्ट। कहीं ना कहीं आई एग्री साकिब भाई। एंड देन मतलब एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वहां पे कि घबराए ना, बिल्कुल। राइट? मतलब आप अगर आप घबरा गए तो आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली। राइट? तो आप शांत रहें, रिलैक्स माइंडसेट से जाएं और जिस पर्पस से जा रहे हैं वो एक सही तरीके से कम्युनिकेट करें कि हाँ ये मेरा प्लान है,
राइट। एंड हाँ, आप उसके लिए थोड़ी सी मतलब आप मॉक इंटरव्यूज कर सकते हैं and वो सारी चीजें कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी आपका आंसर फ्रेम आउट बेटर करने के लिए। तो द मेन थिंग इज कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, दैट्स वन वर्ड एडवाइस के भाई, कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। अगर आप कैजुअल में जा रहे यस, हो तो यू हैव द कॉन्फिडेंस के भाई कपड़ों से कुछ मैटर नहीं करता, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो ऑस्टिन, विल यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपको कैसा रहा इंटरव्यू में और सारा? मैं तो मैं सूट पहन के नहीं गया था, बट आई स्टिल वो सेमी फॉर्मल्स एंड लाइक ही सेड हम लोग को प्रिपरेशन और कराया गया था, एंड बेसिकली हैविंग द राइट पेपर्स एंड कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे एंड इफ दे फाइंड आउट कि द चाइल्ड इज नॉट, वो बच्चा जो भी यूएस जा रहा है इज गोइंग फॉर द रॉन्ग इंटेंट, तो दे विल रिजेक्ट द वीजा। सो द सोल पर्पस शुड बी व्हाट एम आई गोइंग टू द यूएस फॉर, और क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है, एंड मेरे प्लान्स क्या है आफ्टर 4 years। इफ यू हैव दैट दीज थ्री थिंग्स क्लियर, you'll get the visa in 1 minute। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और भाई, और कई मैंने ये भी हिसाब आई हैव ऑब्जर्व कि भाई उनको डायरेक्ट भी नहीं बताना आपका प्लान क्या है, विद इन देयर क्वेश्चंस आप आंसर एक स्टोरी की तरह बना के दो। आपकी एक स्टोरी हो, आंसर आप उसे, बल्कि खुद आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, लाइक अपना जो बेस्ट पॉइंट है, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप बताओ, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछे, आपकी लाइफ स्टोरी ओवरऑल। सो बहुत ही अच्छी एडवाइस की आपने कि जो आपका फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। Very करेक्ट, nice. करेक्ट, आई एग्री। So, my second question जो होगा वो ये कि उसके बाद मेरे लिए जो ज्यादा शॉकिंग बात थी, कम्युनिटी कॉलेज में वीजा लगना नहीं थी। जो मुझे इंस्पायर किया आप लोगों ने वो ये कि भाई कम्युनिटी कॉलेज से एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, जिस तरह ऑस्टिन went to UC Berkeley. That's a dream college of many people, many students, और इवन मेरा भी एक ख्वाब था कि यूसी बर्कली में, जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरा इरादा था कि यार यूसी बर्कली में एक्सेप्टेंस मिले, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट। सो कम्युनिटी कॉलेज से डायरेक्ट ट्रांसफर लेना यूसी बर्कली में, कॉर्नेल में, जिस तरह नारायण भाई ने मुझे बताया कि इवन स्टूडेंट्स कॉर्नेल में गए हैं कम्युनिटी कॉलेजेस में से। सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर मी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि यार कम्युनिटी कॉलेज से भी आप पढ़ के ना सिर्फ आप एक अच्छी रैंक पे जा सकते हो, बल्कि अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। सो आई वुड रियली लव टू लिसन योर एडवाइस। एब्सोल्युटली साकिब भाई, राइट। एंड तो ऑल्सो अनदर रीजन जब हमने डियानजा कॉलेज चूज किया, बिकॉज डियानजा इज रैंक नंबर 1 इन कैलिफोर्निया फॉर ट्रांसफर्स, राइट। तो उसका जो ट्रांसफर रेट है इज नंबर 1, राइट। आई मीन लॉट जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो उनके फैकल्टीज हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं, दे आर वेरी दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड जो एंटायर इकोसिस्टम और जो पूरी कम्युनिटी है वो आपको पुश करती है ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करें। जस्ट नॉट कॉर्नेल बट डियानजा से लोग एमआईटी भी ट्रांसफर करें, राइट, एंड विथ फुल स्कॉलरशिप, राइट। एंड वो एग्जैक्टली, एंड दो ऑल ऑफ दीज आर मतलब वो हमारे दोस्त लोग हैं, राइट, हम साथ में पढ़े, एंड मतलब दे हैव मेड इट टू एमआईटी, कॉर्नेल, बर्कली। बर्कली तो आप मान के चलें कि बहुत सारे बच्चे बर्कली ट्रांसफर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेजेस, सीसीसी, राइट। So California Community Colleges has a agreement with UC system and CSU system कि जो उनके पूरे एग्रीमेंट्स लेड आउट है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको आपका एडवाइजर सही तरीके से गाइड कर पाएगा कि आपको ये सारे कोर्सेज लेना है इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट ट्रांसफर टू यूसी बर्कली। जब हम आए, आई थिंक ऑस्टिन मेरे से एक क्वार्टर पहले आया था, क्योंकि मतलब आई वाज स्टिल, उस समय कोविड चल रहा था। बट ब्रेकिंग डाउन कि क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं फॉर यू टू गेट इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। नंबर 1, योर जीपीए, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ पे आ गए तो बस हो जाएगा, ऐसा मतलब यहाँ पे आने के बाद यूसी बर्कली हर किसी का नहीं होता, राइट। तो इसीलिए आपको अपनी एकेडमिक रिगरसनेस तो दिखानी है कि आपका जीपीए बहुत अच्छा है,
और अगर आप कोई कंपेटिटिव प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और ये सारे प्रोग्राम जो बहुत कंपेटिटिव हैं यहाँ पे, तो आपको आपका जीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड अच्छा मतलब आई थिंक व्हेन ऑस्टिन अप्लाइड हिज जीपीए वाज 3.93 समथिंग, राइट, फॉर बर्कली, राइट, एंड एंड दैट इज द रेंज ऑफ जीपीए जो आपको चाहिए, कि यहाँ 3.8 से लेके 3.9 के ऊपर का जीपीए होगा तो आई मीन दैट्स वो जीपीए आपको चाहिए कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं। हम्म तो दैट्स नंबर वन। सेकंड कि आपने सारा पूरा जो कोर्स करिकुलम है जो इनिशियल 2 साल का है वो पूरा कंप्लीट किया हो। तो जो एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा था उसमें सारी चीजें मेंशन रहती हैं। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड assist.org जहाँ पे आप पूरा कैलिफोर्निया सिस्टम का डेटा निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको किस यूनिवर्सिटी से किस यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना है किस मेजर के लिए, तो वो आपको पूरा एग्रीमेंट बता देता है कि आपको ये सारी क्लासेस लेनी है फॉर यू टू ट्रांसफर। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो 2 साल में अपने एजुकेशन प्लान में वो सारी चीजें फिट करें और मेक श्योर कि मेजर क्लासेस आप पहले लें ताकि आप दिखा सकें कि आप अपने मेजर क्लासेस में अच्छा स्कोर किया है, तो द यूनिवर्सिटी गिव्स यू प्रेफरेंस फॉर एडमिशन। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट होना चाहिए, बट दिस इज नॉट इनफ, right? एग्जैक्टली Another thing that these top universities are looking at is leadership quality, right? Because I mean, Berkeley is ranked number one to produce the most number of entrepreneurs in the US, right? Or I think in the world, right? So UC Berkeley से सबसे ज्यादा founders निकलते हैं, startup founders, right? And I think the number one thing that every startup founder has is leadership quality, the ability to lead a team. तो आपको जब आप कम्युनिटी कॉलेज में हैं तो आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी। तो आप किस तरीके से करेंगे वो? मैंने और ऑस्टिन ने वी फाउंडेड बंच ऑफ क्लब्स, लाइक हमने इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की शुरुआत करी वहाँ पे, हमने एसीएम की शुरुआत करी डियांजा कॉलेज में, एंड हमने बहुत सारे इवेंट्स करे। आज की तारीख में डियांजा में सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट होता है दिवाली, राइट, एंड उसके पहले एंड वी एज अ टीम बॉट दिवाली टू द कैंपस, उसके पहले सेलिब्रेट नहीं होता था, राइट, एंड हर साल 500 से 600 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, राइट फ्रॉम द डीन टू द चांसलर, एवरीबडी पार्टिसिपेट्स एंड दैट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल। तो इस तरीके से आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आई एम अ लीडर, कि मैंने एक क्लब फाउंड किया है, मैंने कल्चरल इवेंट्स करे हैं, लोग मुझे जानते हैं, राइट। तो दैट्स आल्सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर कि जब आप आ रहे हैं तो आप इन क्लब्स की शुरुआत करें, या फिर कहीं अगर आप कुछ शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो आप उस क्लब में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या एक लीडरशिप पोजीशन पे कैसे जा सकते एग्जैक्टली हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक नंबर 4 इज कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या कोई से टेक्निकल मेजर में जाना चाह रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपने आउटसाइड द क्लास क्या किया है, राइट, कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है मेरे स्किल्स को यूज करके जिसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है कम्युनिटी के लिए, राइट। सो आई थिंक जो हमने किया था इट वाज वी क्रिएटेड अ स्मॉल पॉडकास्ट, राइट, कि वी वर इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ पीपल। इट वाज कॉल्ड व्हाट वाज इट कॉल्ड ऑस्टिन? माइंड समथिंग, Mind up. mind, correct. So we started interviewing professors, deans on mental health, right, and psychology, and created some technology behind it. We did a survey कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं campus पे, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट हाँ, जिस ऑर्डर में मैंने बताया उसी ऑर्डर में मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपका जीपीए 3.2 है लेकिन आपने बहुत सारा काम किया है आउटसाइड ऑफ द क्लास। आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क आउट। बिल्कुल सो जीपीए, कोर्सेज, लीडरशिप, प्रोजेक्ट्स, आई थिंक दिस इज द ऑर्डर दैट यू नीड टू फॉलो। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक ऑस्टिन के पास और चीजें होंगी शेयर करने के लिए, बिकॉज ही इवेंचुअली गॉट इनटू यूसीएलए एंड अदर टॉप स्कूल्स एज वेल। Exactly, Austin. I would love to hear you. How you got? What was the main reason of you getting into USC, UCLA?
एंड अदर टॉप कॉलेजेस। और मुझे ये बड़ी अच्छी आपकी बात लगी कि आउटसाइड ऑफ द क्लास ही चीज़ों को भी नहीं फोकस ज़्यादा रखना। ये ना हो कि आपका जीपीए मिस हो जाए, एंड दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वी आर एग्जैक्ट गेटिंग। एग्जैक्ट या सो बेसिकली मेरे को आई अप्लाइड टू ऑल द यूसीस और मैं सारे यूसीस में घुस गया एंड आई आल्सो अप्लाइड टू यूआई यूसी, वहाँ पे भी मैं घुस गया। आई गॉट लाइक वेट लिस्टेड टू जॉर्जिया टेक विच आई डिडंट नो लाइक it is like also competitive as well, but it is Georgia Tech is more like an academic school. वहाँ पे जाने के लिए you need like a 4.0 which is a strict requirement, and उनके although मैंने classes fulfill किए थे, you never know like why they rejected you. And for UC Berkeley, UCLA, आपको leadership activities सिखानी पड़ती है, you have to be involved in the community. मैं on campus tutoring भी कर रहा था for 4 to 5 semesters. Interesting बात ये है कि like even before coming to community college, I started working in clubs. I reached out to a club in the community college. वहाँ से मैं क्लब चलाना सीखा और जैसे ही मैं कम्युनिटी कॉलेज में विद इन अ सेमेस्टर में अपना खुद का क्लब रन कर रहा था, एंड थ्रू दैट मैं कंप्यूटर साइंस में लीडरशिप दिखाया, एंड मैं एक छोटे से प्रोग्राम में पार्ट लिया, गूगल समर ऑफ कोड करके, वहाँ पे थोड़ा कोड किया। एंड नासा का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, नासा NPWE, वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिखना स्टार्ट किया। सो दिस इज लाइक समथिंग यूसी बर्कली लुक्स इनटू। तो हर एक स्कूल में एक आइडियल स्टूडेंट प्रोफाइल रहती है कि एक बच्चा ये में अच्छा रहता है, कि बच्चा रिसर्च में अच्छा है, बच्चा लीडरशिप में अच्छा है, बच्चा टेक्निकल में अच्छा है, तो इस बच्चे को ले लेंगे। He'll be able to maintain the GPA, like Narayan mentioned, and UCLA as well. But UCLA is more lenient as compared to UC Berkeley because of the ranking, and UC Berkeley is like comparatively difficult to get in. But a lot of good schools are emerging, like UCSD, जो if you go into Dianza है, बहुत easy है घुसना, and I think a lot of international students, especially from Southeast Asia, को पता नहीं रहता कि community college is a good pathway to go into universities, and there are multiple ways where आप credits सकते हो, 3 साल में finish कर सकते हो, and especially जब अभी education इतना expensive है, हम preach करते हैं कि finish your education as soon as possible, like the best way to embrace a good education is by finishing it early. तो 3 साल के अंदर finish करो so that you cut down the cost and time on learning. करेक्ट। एंड एक और चीज है साकिब भाई, तो यूसी बर्कली और यूसीएलए का फ्रेशमैन एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे तो आपको बहुत कम दिखेगा, कि आई थिंक हार्डली व्हाट सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में ही है अर्ली, राइट। बट अगर आप ट्रांसफर एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो लाइक कम्युनिटी कॉलेज में आके अच्छा परफॉर्म करके आपका चांस और बढ़ जाता है क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है, right? So it is also considered a backdoor for you to enter into this top university. You're on mute, साकिब भाई। आप म्यूट पे हैं। साकिब भाई आप म्यूट। You're on mute, साकिब भाई। नारायण भाई, बहुत मुझे एक शॉकिंग बात है कि ट्रांसफर में ज्यादा लोग ले रहे हैं फ्रेशमैन की बजाय। सो दैट्स अ रियली न्यू थिंग Yes, फॉर मी। आई एम दैट्स अ रियली गुड इंफॉर्मेशन वी आर। correct. And I mean, there's a reason, right? क्योंकि universities want to maintain their rankings, right, and maintain their dignity, right? तो उनका freshman acceptance rate कम रहता है, लेकिन transfer acceptance rate ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। मुझे याद पड़ता है जब मैंने भी एज ए फ्रेशमैन अप्लाई करा था, सिंगल डिजिट हो था। एज एज मुझे जो याद आ रहा है 5-6% होगा। Correct, तो correct, वो correct, उन्होंने correct, एक वाकई कॉम्पिटिटिवनेस भी रखनी है कि भाई हम बहुत कम लोग ले रहे हैं, सो एक प्रेस्टीज बनती है। सो या यू आर राइट। सो या correct. Or one of the main reasons why going to a community college would be a good way is because हम लोग को सेम प्रोफेसर मिल रहे टॉप यूनिवर्सिटी के। तो हम लोग को पढ़ाई के मामले में आई बिलीव आफ्टर गोइंग टू यूसी बर्कली, पढ़ाई ज़्यादा कम्युनिटी कॉलेज में अच्छी हो रही थी बिकॉज प्रोफेसर आप पे ध्यान दे रहे हैं एंड यू कैन लर्न एज वेल। आफ्टर गोइंग टू यूसी बर्कली, वन थिंग आई नोटिस्ड कि बच्चों को पढ़ने में हेल्प नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीएस आर हेल्पिंग, सो यू आर ऑन योर ओन कि आपको खुद से अपना देखना है। बट
I believe as a university student, you need like some hand holding, and that's something community college gives to different students, which a Right. lot of universities fail. So, there's something I tell people like go to either, if you want like some hand holding, go to either liberal arts or go to a community college, then transfer to a university. एग्जैक्टली। Exactly. क्योंकि यूएससी जो बड़े नाम है जिस तरह यूसीएलए, हार्वर्ड, इनका प्रोफेसर का एक अपना एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है, उनके ऊपर टैग लग चुका है कि ये इस बिग बड़ी यूनिवर्सिटी में नाम है इनका। सो आई थिंक वो इतनी एफर्ट नहीं पुट कर रहे व्हाटसोएवर। सो यू आर राइट कि जो कम्युनिटी कॉलेज में है वो मोर फ्रेंडली भी होते हैं, मोर ओपन एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दे विल हेल्प यू एज मच एज दे कैन एंड गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। या यू आर राइट हियर ऑस्टिन। एब्सोल्युटली। एंड साकिब भाई, आई थिंक जो क्लास साइज है, मतलब आपका जो स्टूडेंट इज टू प्रोफेसर का रेशियो है कम्युनिटी कॉलेज में, वो भी बहुत कम होता है। आई थिंक 20 और 30:1 का रेशियो है कि एक क्लास में 30-40 बच्चों से ज्यादा नहीं होते हैं। राइट। जो कि आपका शायद हाई स्कूल में भी इतना ही रेशियो होता है कि 30-40-50 बच्चों से ज्यादा एक क्लास में नहीं होते हैं। तो प्रोफेसर आपको जान पाता है, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ऑफिस आवर्स में जब आप जाते हैं तो प्रोफेसर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट। एंड आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलने में भी बहुत आसानी होती है इन प्रोफेसर से, क्योंकि आप एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर चुके हैं उनसे। Exactly, exactly. So, Narayan bhai, I would also love to talk about your experiences in Silicon Valley, कि Silicon Valley ने एज ए कैरियर में आपको कैसे हेल्प किया और एज ए पर्सन कैसे हेल्प किया। लाइक ब्रीफली इन 2 to 3 minutes यू कैन एक्सप्लेन कि सिलिकॉन वैली में आपका एक्सपीरियंस क्या था, और सिलिकॉन वैली से पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेनिफिट्स आपको क्या हुए। बिकॉज आई नो एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि सिलिकॉन वैली से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सिलिकॉन वैली से ऊपर का सिटी एज ए कंप्यूटर साइंस कोई नहीं है, आपको बेस्ट टेक सिटी यही है। तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बताएं सिलिकॉन वैली का। डेफिनेटली डेफिनेटली साकिब भाई। तो आई थिंक अगर इफ आई वर टू पुट माय एक्सपीरियंस इन वन वर्ड, it is gonna be amazing, right? I mean, I would say कि mm, जो मुझे यहाँ से मिला है, शायद वो किसी और शहर से ना मिलता। एंड द बिल्कुल। रीजन इज कि अगर आप भले ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ना भी बना रहे हो, राइट, टेक्नोलॉजी में तो अगर आप हैं, और अगर आपको टेक्नोलॉजी में ही अगर आपको एक अच्छी जॉब करना है, अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, तो इससे अच्छी जगह नहीं है। यू शुड डेफिनेटली बी कमिंग हियर, राइट। फाइंड आउट वेज कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, राइट, एंड किस तरीके से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आ सकते हैं। बट उसके अलावा यहाँ पे जो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज अ फाउंडर, एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, आई थिंक इट्स अनमैच्ड एंड अनपैरेलल। क्योंकि आप लिटरली सैन फ्रांसिस्को में यू विल meet somebody randomly who might be a founder who have raised $100 million in Series A funding, एग्जैक्टली। राइट। एंड मतलब ऐसा नहीं, एस एग्जैक्टली साकिब, एंड ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, राइट। दे आर वेरी ओपन एंड डाउन टू अर्थ, एंड देर बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल आर वेरी यंग, राइट, who have raised the money। and जो यहाँ का कल्चर है in terms of helping founders and helping the community is very 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 nice। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं तो प्लीज कम हियर, and please find out a way how you can come here and make your career and make your life out of the Silicon Valley, right? So, मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली 20s एंड अर्ली 30s इज हसलिंग मोड फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आके हसल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, इंस्टेड कि अगर आप किसी और शहर में हसल करेंगे। एग्जैक्टली। नारायण भाई, लव योर एडवाइस कि कुछ भी करके सिलिकॉन वैली में आ जाए। सो अभी आपकी एडवाइस भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, एंड आई हैव बीन ट्राइंग कि भाई मैं भी किसी ना किसी तरह सिलिकॉन वैली में जाऊं और वहां पे बे एरिया में मुझे एक लिविंग और वहां पे रहूं, वो सारा कुछ करूं। सो आई हैव बीन अप्लाइंग टू मैनी यूनिवर्सिटीज देयर, यू नो, मैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यू नो। तो अमेजिंग एडवाइस। आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि भाई कोशिश करें कि सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के पास ही आप आए इफ यू कैन। सो दैट्स द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम दिस होल पॉडकास्ट कि भाई सिलिकॉन वैली कैन मेक योर लाइफ। एंड नारायण भाई, ऑल्सो यू टॉक कि भाई 100 and millions of dollars की फंडिंग लोगों ने उठाई होगी
यंग एंटरप्रेन्योर होंगे और बहुत ही हम्बल तरीके से आपको मिलेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली कि आप उनको ये नहीं होगा कि हमारे पास इतना पैसा है या कोई गरूर या बिल्कुल नहीं होगा। सो मैंने आई हैव हर्ड ए स्टैट्स समवेयर दैट के in San Francisco, every 4% there's 1 millionaire in terms of dollars. So Austin, what would you recommend? I think like Narayan is back, so Narayan's perspective would be Narayan अपना share कर सकता है, then I can go and share my perspective. So Narayan bhai, what do you think? I have heard that हर चार में से एक बंदा वहां पे मिलियनर है सैन फ्रांसिस्को में। सो इफ यू आर गोइंग यूजिंग ए सबवे तो क्या पता आप एक मिलियनर के साथ भाई राइड ले रहे हो। यू आर ऑलवेज टॉकिंग। नारायण भाई आपका माइक म्यूट है। कैन यू स्पीक अगेन? वी कांट हियर यू। कैन यू रीजॉइन? उतनी देर हम ऑस्टिन का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। कैन यू रीजॉइन एंड देन वी कैन गेट बैक टू यू। Sure. Like I can give my own experience. हम्म। तो I had a story कि जहाँ पे मैं स्कूल में मेरे को लंच करने का था and there was an event going on and I randomly entered into that event and I believe I met like the CTO of Databricks. At that time मेरे को पता भी नहीं था he owns around like $1.4 billion and I heard his name कि Ion Stoica आया है and I just went and met him and randomly knowing कि आप क्या करते हैं मैंने उससे इतना ही पूछा। फिर मैं घर पे जाके पता चला he owns like $1.4 billion his net worth। तो it's a humbling experience कि when you walk in Silicon Valley you get to meet people who are rich but who are humble as well and who want to really help you। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि they'll go out of the way if you are from a good school they will connect with you and बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सिलिकॉन वैली में जो कहीं पे भी नहीं होंगे दुनिया में एंड one of the main reasons why I also recommend Silicon Valley would be because uh, the world is like faster in Silicon Valley। दुनिया यहाँ पे फास्ट चलती है बाकी दुनिया से। तो इफ अगर आप इधर 5 साल सीख के अगर हम इंडिया में जाते हैं we have already learned a lot and we are already in the future when we go back to India। So there's something like no country could ever provide or no city can ever provide जो सिलिकॉन वैली दे सकता है क्योंकि यहाँ की जो मेंटालिटी है build fast fail fast it gives you money। People are much more accepting to failures and at the same time यहाँ का जो consumer behavior है they are willing to spend which no other country or developing country does। That is something I really appreciate about like Silicon Valley। So if you get a chance, find a college nearby in Silicon Valley। CSU Chico hai, Sacramento State hai, then there is Berkeley, then San Jose State, a lot of universities। And if like education is like really expensive for you, I'd suggest like going to a community college and then transferring। Exactly. Austin, you gave amazing advice that uh, even that person have more than $1 billion in net worth, and I don't think he would have made you feel like he have that big money, right? Right। Amazing. Yeah, and यही है कि we meet like really fantastic people and they have done like really great things and वो Silicon Valley में ही हो सकता है कि you get like inspired, not anywhere else in the world where they motivate you to like fail and learn at the same time। Like we come from a place where failing is not a option। यहाँ पे failing is the option to grow। तो Correct. yeah, so failure is appreciated। So that is something। Exactly. तो And या सो आई जस्ट फिनिश फर्स्ट कि लाइफ में अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फेलियर कभी दिखेगा ही नहीं। तो यू हैव टू डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फेल टू रीच टू द बेस्ट रिजल्ट एंड आई थिंक लाइक नारायण कैन शेयर हिज ओन पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली साकिब भाई, एंड देन जो ऑस्टिन ने बोला, दो चीज़ें हैं कि नोवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, नोवेयर इन द वर्ल्ड से कॉन्ग्रेचुलेशन व्हेन यू क्विट योर जॉब, राइट। लोग बोलते हैं कि अरे भाई जॉब क्विट कर दी, अब क्या करेगा, राइट, बिल्कुल। अब पैसे कैसे कमाएगा, क्या होगा, राइट। बट ओनली इन सैन फ्रांसिस्को क्विटिंग जॉब इज सेलिब्रेटेड, right? So a week back, a bunch of founders came to my place.
SF Tech Week करके SF Tech Week A16Z ऑर्गेनाइज करता है. There are like 2000 events happening in that tech week. And बहुत सारे मेरे founder friends flew from different parts of the US, and one of them was actually quitting her job, and we all said congratulations and clapped for her and saying that now is the time for you to build, right? And this is the place for you to build, Very right? nice. And that's the spirit of the Bay Area. And यहाँ पे एक और चीज है कि you fail fast, learn fast and grow fast, right? So you're like कि बॉस अगर ये नहीं चल रहा है तो दूसरी चीज पे you fail it, you pivot, right? कि in your business model, in your startup, you have to pivot a lot of times. So अगर ये नहीं चल रहा है उसको छोड़ो, उससे जो learnings है वो learning उठाओ, नए next idea पे काम करो and उसको success बनाओ, उसमें growth करो, Exactly. राइट. आप मानेंगे नहीं कि कल ही मैं एक इवेंट में था, जो वो YC फाउंडर्स है, Y Combinator, everybody knows is like the biggest incubator in the world out there, right? And again, you will meet a lot of Y Combinator founders here in the valley because Stanford and Berkeley produces the most amount of talented and great founders, and both of the universities are here in the Silicon Valley, right? Exactly. And that's the reason Y Combinator and biggest of the VC firms like maybe Venlo Venture, Sequoia Capital, A16Z, Khosla Ventures are right here in Sand Hill Road, right? So, matlab, opportunities are unlimited here in terms of अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप टेक में काम करना चाहते हैं, अगर आप कंसल्टिंग में काम करना चाहते हैं, आप मतलब आई वुड से कि किसी भी तरह आप आ जाओ यहाँ पे, और मतलब उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता. आप आ जाओ, देन यू विल फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग. नारायण भाई, आपने जिस तरह एक जज्बात के साथ बताया कि अभी मैं बता नहीं सकता कि बस आ जाओ यहाँ पे, बिलीव मी कि मेरे अंदर भी वो एक लाइक रश एंड द एक्साइटमेंट होती है कि भाई मुझे सिलिकॉन वैली जाना है, सो ट्रूली अमेजिंग अमेजिंग एडवाइस के भाई अगेन आई एम सेइंग यू कि भाई सिलिकॉन वैली इज नॉट कंपेरेबल टू एनी सिटी इन द वर्ल्ड. ऑस्टिन भाई, आप कह रहे थे आप 5 साल आ गए हो सिलिकॉन वैली में दुनिया से, बट आई वुड से कि इट्स इन फ्यूचर 100 साल आ गया सिलिकॉन वैली भाई. वी आर there's no city comparable to Silicon Valley. Yeah. Absolutely, and I mean it's just not technology here. The people here are super friendly. Community is very nice. अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो आपको खाना भी बहुत अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे, राइट? एंड आपको आपकी कम्युनिटी मिल जाएगी यहाँ पे. वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, राइट? तो मतलब आई थिंक अच्छे पैसे के साथ आप अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे यहाँ पे, राइट? वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कम्युनिटी है, लोनली फील नहीं करेंगे, खाना अच्छा मिलेगा. आई थिंक इट्स अमेजिंग. Exactly. And at last, I would say कि I would like to know कि जो आगे टेक्नोलॉजी और फ्यूचर जो है वो किस तरफ जा रहा है, एआई को आप किस तरह देखते हैं, एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज को, किस मार्केट को ज्यादा देखें. सो व्हाट वुड यू बी योर एडवाइस? Correct, Sakib bhai. Austin, you would like to go first on that? Sure. So basically, I'd suggest कि मैंने internship किया था, and a lot of the world does not know कि अभी at the moment autonomous cars बन रहे हैं, and UC Berkeley is incubating them कि autonomous cars, drones and stuff. मैंने internship की, we incubated them, and world is going more towards on the robotic side, clean tech side, and a lot of the things in AI would be happening in healthcare, because healthcare में we have only tapped into 10% of the actual problems. 90% could more be solved using AI. Clean tech में जहाँ पे clean energy आएगी, chemical engineering would be in demand. Um, like नई clean energy. Then the third point would be कि robotics is the best time to do. Robotics would be out like pretty soon. जो physical AI NVIDIA बोलता है. And besides that, brain related things and a lot of consumer apps. Fintech hoga, crypto would be out. Crypto would be a big thing in the coming 5 years. And besides that, like अगर कोई computer science पढ़ रहा है, there's something I'll suggest कि security पढ़ो, crypto पढ़ो, go to crypto events, see like what is happening in the space, take part in competitions, learn about AI. AI में AGI आएगा, super intelligence होगा, quantum computing होगा,
And in terms of like business people, the best thing to do is like going to Silicon Valley and building things. And जब तक आप build नहीं करोगे तब तक आप fail नहीं होगे. And a lot of my friends who went to universities, who studied entrepreneurship, they build like really basic products but are working for top companies right now because वो fail हुए जल्दी and the companies really like them. And that's how they were able to get into big startups जो Series C है, like Ramp and stuff. A year ago मैं उनसे बात कर रहा था, they were building like a robot to clean like snow and stuff. Now they are in like growth at Ramp, and people are just growing. And I had a friend in the e-commerce. He was building like an e-commerce platform, made like $1 million within 2 years, and now he just received a funding for a hydrogen related company, hydro company, for 10 million. So people do like unparalleled things. In growing or developing countries, people tell ki linearly chalo. I personally suggest people ki think broader, work narrower, and find places that are growing and reach out to people in those spaces, get mentorship. And I think like US would be the best place. Even after like a lot of problems happening to international students, still this would be the best place to learn. I think Agree. Austin went a bit technical, right? But I'd simplify things for the audience कि यहाँ से अगर मैं एक पत्थर फेंकूंगा तो पहला पत्थर एक फाउंडर को लगेगा जो एक एआई स्टार्टअप बना रहा है, और अगर मैं दूसरा पत्थर फेंकूंगा तो एक इन्वेस्टर को लगेगा जो वीसी के लिए काम करता है, राइट? सो दैट्स द एआई बूम राइट नाउ हियर. लाइक मैं मस्ती भी नहीं कर रहा हूँ. जिस जगह हम रहते हैं मेनलो पार्क में, राइट, लिटरली all the VC firms, all the investors are right here, and every founder wants to meet them, and every founder is pitching to a VC, right? Exactly. So the culture is insanely amazing, and people are building a lot of things in AI, right? I mean, I think I can't even imagine कि मैं 5 साल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले 1 साल में AI कितना एडवांस हो जाएगा, राइट? एंड सबसे पहले वो इनोवेशन जो होगा वो यहीं पे होगा क्योंकि एवरीथिंग इज बिल्ट है, No doubt. राइट? तो अगर इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, अगर किसी को उस जर्नी का पार्ट बनना है, राइट, तो आई मीन you have to come here again. I mean, I'm not even joking in the fact that matlab, I tell my friends, I tell my relatives, kids and everybody, right, कि यार मतलब अगर आपको सही में कुछ में लाइफ में करना है और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो नंबर वन फाइंड अ वे कि आप यहाँ पे आओ, फिर यहाँ से अपना लाइफ बनाओ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जिन लोगों से आप मिल पाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट? एंड मतलब मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया या हम यहाँ पे आए इसीलिए, बट आई सी पीपल कमिंग एंड डूइंग वंडर्स देयर. सो दैट्स समथिंग एवरीबॉडी शुड एक्सप्लोर. नारायण भाई बिल्कुल अच्छी बहुत एक बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि एक आप स्टोन फेंकोगे तो इन्वेस्टर को लगेगा, दूसरा फाउंडर को लगेगा, एंड दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली. एंड जो इन्वेस्टर है वो भी पैसा फेंकना चाहते हैं और वो भी स्टार्टअप देख रहे हैं कि कौन सा स्टार्टअप बूम करेगा, बिकॉज एग्जैक्टली. अगर वो 10 कंपनीज को भी स्टार्टअप में पैसा दे रहे हैं और 10 की 9 फेल हो जाती हैं, 1 कंपनी उनको इतना रिटर्न दे जाएगी, कि वो 9 तो भूल जाएंगे. करेक्ट. या आई मीन यूजुअली मतलब जब कोई प्री सीड स्टेज में इन्वेस्ट करता है बहुत ही इनिशियल लेवल पे, तो दे आर लुकिंग एट 10x 20x रिटर्न्स, एग्जैक्टली. राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट? तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है रिटर्न्स का, राइट? तो मैं तो मतलब 10x तो आप मान के चलें कि 1 साल में आपने अपना पैसा 10 गुना कर लिया, मतलब दैट इज इनसेन, राइट? बट आई मीन अगेन, चूंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आना चाह रहे हैं, राइट, यू मतलब आई बिलीव कि अगर आप प्रैक्टिकली ऑप्टिमाइज करें अपना एजुकेशन कि किस तरीके से आप पैसा बचा के यहाँ पे आ सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं instead of going anywhere else in the US, right? So I think they should definitely reach out and they should definitely look into this. एग्जैक्टली. नारायण भाई, होपफुली हमारी जो आज की पॉडकास्ट थी और जो हमारी कन्वर्सेशन थी ऑडियंस के लिए, आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी.
और अगर तो ऑडियंस के नीचे डिमांड आती है कि हमें एक और वीडियो बनानी चाहिए, जो ऑडियंस नीचे अपने क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में लिख देगी, एंड देन वी कैन सी कि हम फॉर एक दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे वीडियो का फॉर श्योर। और आपके साथ और भी हम बातचीत करते रहेंगे ताकि मेरी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। एंड थैंक यू सो मच नारायण एंड ऑस्टिन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सो with that we are ending this podcast here, so please make sure you like this and share with relevant people and do subscribe. Thank you so much. Have a good day. Definitely. Thank you so much, Sakib, for having us. Pleasure speaking.